Good morning, children. Okay. In the last session, we have already completed the first part of non-finite verb. Today, we will study the kinds of non-finite verb. Okay. So today's part is kinds of non-finite verb. Okay. So according to today's topic, we have already discussed about non-finite verb. What are non-finite verbs? Non-finite verbs are those by which we cannot know the time of the action. Okay, it means non-finite verbs are not doesn't change according to the tense. मतलब समय के अकॉर्डिंग नॉन फिनाइट वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आते, इसीलिए इन्हें नॉन फिनाइट वर्ब कहा जाता है। फिनाइट वर्ब वो होते हैं जो नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो किसी भी इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। अब इन तीनों के इसका सिंपल एक ही मीनिंग है कि जो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं they don't tell the tense, they don't tell about tense, वो आपको टेंस की जानकारी नहीं देते। इसका एक सिंपल सा मीनिंग हम क्या लगाएंगे कि वो टेंस की जानकारी नहीं देते हैं। ओके क्लास? Ma'am, हाँ बेटा। ma'am, the screen is not visible. वेट, is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So next is the first part. First, we have already discussed a little about the gerund. You can speak it gerund or gerund, whatever. Okay, both are fine. Next is participle. Excuse me. Yes. Ma'am, I have given you homework on gerunds. What homework I have given on that day? Ma'am, we have to find out 25 gerunds from the internet. Okay. Have you found? Yes, ma'am. Okay. Kindly Yes. post your homework in your in chat box. You can see the chat box, class. In chat box you can send your homeworks. Okay. Okay, ma'am. Okay. So let's talk me about this. Okay. So the gerund, second one that is participle, and the third one is the infinitive. Okay. The gerund I have told you, whatever verb is written with ing as a suffix, those verbs will be called and they will act as a noun. Those verbs will be called verbal noun and they are gerunds. Like I have given you the example, walking. Walking मतलब क्या होता है? टहलना, है ना? हम कहते हैं ना हम वॉक पर जा रहे हैं, तो वॉकिंग एक टहलना हो गया। दूसरा स्विमिंग, तैराकी हुआ ना। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका हम कह सकते हैं कि ये सारे वर्ब जो है वो नाउन की तरह वर्क करते हैं। अब पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है? द फर्स्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल and second word is present participle. और इन्फिनिटिव्स कौन होते हैं? इन्फिनिटिव्स वो होते हैं जिनके आगे टू लगा होता है। टू के बाद अगर कोई वर्ब लिखी है तो वो क्या हो गई? इन्फिनिटिव। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर किसी भी वर्ब
के पहले टू लग जाता है तो वो वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ओके, सो लेट्स मेक a simple flow chart so that you would be able to understand it easily. Class, simultaneously write down
Class, have you made it? Yes, ma'am. Okay. Can I start explaining? Ma'am. Okay. So you can see that kinds of non-finite verbs are three types: gerunds, participle, and infinitives. These all are the verbs cannot be changed according to the tenses, according to the gender, according to the person, according to the number. Okay, let me give you one example. Like writing. gerund के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर वर्ब के साथ ing जुड़ जाता है तो वो gerund हो जाता है, बताया था। अब वर्ब के साथ ing जोड़ के हमने बना दिया क्या, राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग को हमें किसकी तरह यूज करना है, नाउन की तरह यूज करना है। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, तो मैं अगर सेंटेंस लिखूँ, अगर मैं सेंटेंस बाद में समझाऊंगी लिख लिख कर, पहले मैं सिंपल ही बता रही हूँ। योर राइटिंग इज वेरी बैड। तो यहाँ पर राइटिंग जो है ये किसकी तरह काम कर रही है, नाउन की तरह काम कर रही है। लेकिन क्या राइटिंग के लिए अगर हम इस यहाँ पे मैंने बोल दिया कि योर राइटिंग इज वेरी बैड, ठीक है, अगर हम लिख दें योर राइटिंग वॉज वेरी बैड या लिख दें योर राइटिंग हैज बीन वेरी बैड, लेकिन क्या राइटिंग में कोई परिवर्तन आया? राइटिंग तो सेम ही है ना, राइटिंग में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। इसमें उसके टेंस को बदल देने पर राइटिंग शब्द में किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ। If it cannot be differentiated with the use of any tense, that means that it is gerund. It is non-finite verb. ऐसे verbs जिनको टेंस चेंज करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा gerund जो है वो नाउन की तरह वर्क करता है, ing फॉर्म के साथ नाउन की तरह वर्क करता है। जैसे मैं कहूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें जो वर्ड स्विमिंग मैंने बताया आपको, ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। अब मैं कहूँ स्मोकिंग सिगरेट इज बैड एक्सरसाइज, मतलब ये गलत प्रैक्टिस है, तो आई कैन से दैट स्मोकिंग सिगरेट इज बैड प्रैक्टिस। तो मैंने क्या लिखा, स्मोकिंग लिख दिया ना, तो ये जो स्मोकिंग वर्ड है ये आपका क्या हो गया, gerund हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रोफेशनल एक्ट की तरह काम करेगा। क्लास समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. मैंने इसका क्या एग्जाम्पल बताया था, राइटिंग है ना, मैं इसे लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखो दूसरा हम बात करेंगे पार्टिसिपल फॉर्म। अब इसको इरेज कर देती हूँ तो तुम लोगों को ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नोट डाउन कर लिया था? Yes. हाँ ठीक है, आप सुनो। सो ये जो आपका पार्टिसिपल का फॉर्म है, मैंने इस पे क्या लिखा है, वी प्लस ईडी या वी प्लस आईएनजी। और जब वर्ब में ईडी लग जाता है, आप लोगों को पता होगा कि वो थर्ड फॉर्म होता है, पता है ना। किसी भी वर्ब में जितनी भी आपकी वीक वर्ब्स है, स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात नहीं कर रहे, जितने भी आपकी इस वीक वर्ब है उनका हम थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, ईडी लगाकर, है ना। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांगना, ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया, ईडी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, डिमांडेड बन गया, और ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया, ये डिमांड का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब ये है क्या, पार्टिसिपल, लेकिन ये किस तरीके का पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिर से सुन लो, जब हम ईडी लगाकर कोई वर्ब बनाते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग, जो वीक, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं उनकी थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल नहीं होती है, उनकी भी थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल में आती है। लेकिन जो मेनली यूज किए जाते हैं, मतलब अगर यहाँ पर गिवन दिया होता तो वो भी आपका पार्टिसिपल ही होता, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं उनमें कुछ ही ऐसे वर्ब हैं जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ज़्यादातर वर्ब्स कैसे हैं, वीक वर्ब्स है, जिन्हें हम ईडी लगाकर बनाते हैं, इसीलिए ईडी वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं ना, लोकतंत्र में उसी की ज़्यादा बोलती है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो समझ लो उसी हिसाब से कि वर्ब में ईडी वाले फॉर्म्स ज़्यादा हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कम हैं।
तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कब है, तो तब तुम लोग समझ जाओगे कि जब भी किसी थर्ड फॉर्म की बात होगी तो वो पार्टिसिपल फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपल फॉर्म है आप लोगों का, उस पार्टिसिपल फॉर्म के हिसाब से ये जितने भी वर्ब्स हैं इनमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, इन लोगों में तभी चेंज नहीं आएगा जब इनका यूज एडजेक्टिव्स की तरह होगा। ये अपने दिमाग में फिर से धर लो, मैंने फिर से बोल दिया कि इनका यूज तभी नॉन फिनाइट वर्ब में आएगा जब इनका यूज हम एडजेक्टिव्स की तरह करेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब की तरह करेंगे। फिर से सुन लिया, ठीक है। तुम लोग की बुक में सबसे पहले इन्फिनेटिव के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद जिरंड के बारे में दिया हुआ है और लास्ट में पार्टिसिपल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को मैं इन्फिनेटिव से ही पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अभी आप लोगों को छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होगा, जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है पेंटिंग, ठीक है। अब ये पेंटिंग जो है आपका, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आईएनजी लगा है। किसी भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देते हैं तो वो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म बन जाता है। आपको पता होगा जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, लाइक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इन तीनों में भी हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, आई एम टीचिंग, टीचिंग में आईएनजी लगा है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमने लिखा ना आई एम टीचिंग, इसमें टीचिंग जो है हमने लगाया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, आपका नॉन फिनाइट वर्ब होता है। आया समझ में? अभी इनके यूजेस में बताऊंगी, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगी इसको सेंटेंस में कहाँ यूज किया जाता है, सेंटेंस में दूसरी तरीके से यूज किया जाता है। ये जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हो, ये सेंटेंस तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन जिस सेंटेंस में नॉन फिनाइट वर्ब की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा, वो सेंटेंस दूसरे ही टाइप के होते हैं। अभी मैं बताऊंगी उनके बारे में, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, तुम लोग समझ जाओगे अगर समझदार होगे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों का, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का दे देती हूँ और एक प्रेजेंट और एक पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे देखो, एक सेंटेंस में दे रही हूँ, द गिवन आर्टिकल was published earlier। हमने क्या लिखा कि जो आर्टिकल तुमने मुझे दिया था वो पहले ही छप चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, गिवन यूज किया है, लेकिन ये आर्टिकल के एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, am I right? तो ये जो गिवन है ये तो आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। अभी हमने ईडी वाले का यूज नहीं किया, ये हमने वो वाले का यूज किया जो गिवन वर्ड हमने आपको बताया था पहले से ही। ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो है, ये हमको पता है कि ये वर्ब से बना है और हमें ये भी पता है कि यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन चूंकि ये वर्ब का फॉर्म है, लेकिन अगर हम वॉज की जगह वर कर देते हैं या विल भी कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, गिवन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसीलिए ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल दूं तो देखो ऐसा होगा, she saw me painting the wall। अब देखो इसमें क्या है, पेंट क्या है, आपका वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ये जो पेंटिंग वर्ड है, ये पेंटिंग वर्ब यहाँ क्या कर रहा है, वो द वॉल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कर क्या रहा था ये आदमी। इस लड़की ने तो देखा, लेकिन ये आदमी क्या कर रहा था, ये आदमी पेंटिंग कर रहा था और ये इसकी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके काम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और ये इसके काम कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे करते हुए। इट मींस पेंटिंग करते हुए उसने मुझे देख लिया।
उसने पेंटिंग करते हुए मुझे देख लिया तो मैं क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होने के साथ साथ अगर इसमें 100 की जगह सी लगा देते या डिड सी लगा देते या किसी भी तरीके का कोई भी टेंस चेंज हो जाता तो पेंटिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए पेंटिंग क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। आया समझ में क्लास? Have you understood? कोई भी परेशानी होगी, बीच में कोई चीज नहीं समझ नहीं आ रही होगी तो उसको प्लीज कलेक्ट योरसेल्फ, उसको कलेक्ट किए रहो, बाद में एक साथ सारी प्रॉब्लम्स को छुट्टी कर देंगे, ठीक है? अब तीसरा है आपका इंफिनिटिव। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पहले भी दे चुकी हूँ, आज से बता दे रही हूँ। किसी भी वर्ब के आगे अगर टू लग जाता है तो वो इंफिनिटिव होता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, समझ जाओगे। आई हैव टू राइट अ लेटर। इसमें टू के बाद राइट लगा है, am I right? अब इसी को सेंटेंस को हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है? हम लिख देते हैं आई हैड टू राइट अ लेटर। ये क्या कर दिया हमने, इसको पास्ट बना दिया। क्या राइट में कोई चेंज आया? नहीं ना। तीसरा एग्जांपल इसको फ्यूचर में बना देते हैं, आई विल हैव टू राइट अ लेटर। सॉरी, क्लास अंडरस्टूड? लेकिन क्या राइट में कोई अंतर आया? नहीं आया ना। तो राइट क्योंकि क्यों नहीं अंतर आ रहा है, क्योंकि इसके आगे टू लगा है। ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसको और इसको जोड़ने का। तो ये जो ब्रिज है ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज है कि ये इस राइट को किसी भी तरीके की फॉर्म चेंज करने को अलाउ नहीं करता है। इफ एनी वर्ब comes after the adverb to, it will be used in the first form of the verb. Okay? Okay. So class, I have told you what, like all the three sentences having different tenses, but the verb right didn't change. Okay? That's why यहाँ पर जो टू राइट है ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, ये आपका इंफिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफिनिटिव। इसको अपने दिमाग में क्या कर लो, ग्रैब कर लो इसको अच्छे से। कभी भी लाइफ में किसी भी जगह टू के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। use of to before any verb, that is called infinitive. Okay, next one is आपके बुक में दिया है, मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया इंफिनिटिव के बारे में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हाँ एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी आप लोगों को वो दिया जिसमें हम टू के बाद वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंफिनिटिव होते हैं जिसके आगे टू नहीं लगा होता है लेकिन वो इंफिनिटिव होते हैं। अब उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। उन्हें हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, ठीक है? जैसे ये आपका एक पहला इंफिनिटिव ये हो गया, दूसरा इंफिनिटिव आपका हो गया बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव, am I right class? तो ये टू वर्ब वाला है, इसका एक एग्जांपल लिख लेंगे तो आप लोग डिफरेंस कर जाओगे, ठीक है? आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे she came here to discuss the code. Okay, next example is he wanted to paint her
portrait. Okay. Okay. Next, we are going to talk about their infinitives. The first example in your book is given that she can discuss the lesson now. Second one, she made him paint her portrait. अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में तो सीधा सीधा अगर दिख रहा है कि टू लगा हुआ है तो आराम से पहचान लिए कि नॉन फिनिटिव है। इसके बाद यहाँ पे भी हमने देखा टू पेट लिखा हुआ है, आराम से पहचान लेंगे नॉन फिनिटिव है। लेकिन यहाँ कैसे पहचानेंगे? ये जो देयर इन्फिनिटिव है इसकी पहचान ये है कि इसका यूज फर्स्ट फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर टू के साथ जो भी वर्ब लगती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, यहाँ भी टू के साथ जो वर्ब लगी है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। ऐसे ही यहाँ भी जो देखोगे इसमें जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। अब कहोगे मैम अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है और यहाँ ये भी फर्स्ट फॉर्म में है, जैसे तो देख फिर से ध्यान सुन लो, तो क्या जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो भी तो फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ सिंपल प्रेजेंट का, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिख दिया दे गो, अब कहोगे मैम क्या यहाँ पे ये भी तो फर्स्ट फॉर्म में है तो ये नॉन फिनिटिव हो गया क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम टेंस में चेंज कर देंगे तो ये गो क्या हो जाएगा? वेंट हो सकता है, गॉन भी हो सकता है, डिड नॉट गो भी हो सकता है। गो में कई चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये गो जो हो जाएगा वो बदल जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में अगर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है अगर इसमें हम किसी तरीके का टेंस चेंज करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों को इसका टेंस चेंज करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब हमने ये जो कैन है ना ये होता है प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अब हमने इसको प्रेजेंट टेंस की जगह इसको हम पास्ट टेंस कर देते हैं, कुड कर देते हैं, ठीक है। कुड कर दिया तो क्या डिस्कस में कोई परिवर्तन आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल्स जो वर्ड होते हैं, ये जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, ये जहाँ भी यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कुड के आने पर डिस्कस में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही अगर इस सेंटेंस में मेड की जगह मेक लिख देते हैं या फिर विल मेक लिख देते हैं तो क्या पेंट में कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दूसरा वर्ब है, दो वर्ब हैं। ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में ये वर्ब था, एक ये वर्ब था, लेकिन दोनों वर्ब के बीच में क्या आया है? हिम आया है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस लड़की ने उस आदमी को पोर्ट्रेट को पेंट करने के लिए मना लिया, मतलब उसे करने को कहा। यहाँ पर ये भी हो सकता था शी आस्क्ड हिम, लेकिन अगर यहाँ आस्क्ड हो जाता तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता? हमें लगाना पड़ता टू पेंट। लेकिन चूंकि यहाँ पर आस्क नहीं लिखा हुआ है, मेड लगा हुआ है। मेड का मतलब होता है कि करने के लिए मना लेना, किसी आदमी को करने के लिए मना लेना, ठीक है। तो उसने उसे मना लिया क्या करने के लिए? पोर्ट्रेट को पेंट करने के लिए। अंडरस्टूड क्लास? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इन्फिनिटिव में? No, ma'am. अच्छा, Ma'am. अभी मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव आज क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पार्टिसिपल पढ़ लेंगे और पार्टिसिपल फिनिश कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पार्टिसिपल पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ दोनों की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जीरंड्स।
ओके, जीरंड्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि दे आर वर्बल नाउन्स. Gerunds are verbal nouns and they can be recognized because of their form verb plus ing. Wherever the verb is having ing form and verb ing form is working as a noun, that time they will be called as gerund. Let me give you one example. Singing is a good profession. क्लास, अगर इसकी जगह was कर दें या will be कर दें तो क्या सिंगिंग में कोई चेंज आएगा? क्लास टेल मी, अगर इस सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज कर दें तो क्या सिंगिंग में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, ये नॉन फिनिटिव. दूसरा, ये एक एक्ट है, ये एक काम है, एक प्रोफेशन है, ठीक है. और प्रोफेशन होने के कारण लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? आपका जीरंड है, ठीक है. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, शी लाइक्स पेंटिंग. ठीक है, तो यहाँ पर लाइक्स को लाइक्ड कर दें या विल बी लाइक कर दें तो क्या इसमें पेंटिंग में कोई परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा. इसलिए पेंटिंग क्या है? आपका जीरंड है. तीसरा है आपका स्मोकिंग. सिगरेट्स kills humanity. ठीक है, इसमें स्मोकिंग क्या है? आपका जीरंड है. आया समझ में? अब हम लोग पार्टिसिपल पढ़ें. Yes, ma'am. आज ही ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं. फिर tomorrow I will start exercising, the practicing of your exercise. Okay, class? Next is the participle. Okay, participle I have told you about two types. The first one, that is past participle, and second one is present participle. Class, mute yourself. Mute yourself, class. Okay. Now the first one I was talking about the past participle. That verb third form is past participle. And what are their main use? The main use of the participles, they will be used as an adjective. What adjective? Like, let me give you one examples. Like, first example is given in your book. The wounded soldiers were taken home. अब यहाँ पे जो wounded वर्ड लगा हुआ है ये ईडी के साथ जुड़कर ये क्या है? wound का मतलब होता है घायल होना, wounded का मतलब घायल. ठीक है, ये हो गया आपका घायल. और ये हमने किसकी तरह यूज किया है? ये थर्ड फॉर्म लगाया है तो ये क्या है? आपका पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, और यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. किसका एडजेक्टिव? सोल्जर्स का एडजेक्टिव. क्लास अंडरस्टूड? Next, ma'am. अब देखो. Yes, ma'am. इसमें अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल देख लो.
प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो फॉर्म होते हैं, अभी दोनों फॉर्म बता देती हूँ। एक आपका पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म भी मैंने बताया कि वुंडेड, और वुंडेड इसमें ईडी लगा दिया गया है, और एक गिवन वाला एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ मैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में देख लो, ये देखो इसमें, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, द डांसिंग गर्ल इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो डांसिंग गर्ल है वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। तो इससे जो डांसिंग वर्ड है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, किसके लिए, गर्ल के लिए, और यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, इसके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। फिर से सुन लो, जीरंड का यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है, लेकिन पार्टिसिपल का फॉर्म यूज किया जाता है किसके लिए, एडजेक्टिव्स की तरह या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब की तरह, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग क्लास 8 में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो आप लोगों को मेन इंट्रोडक्टरी इसके बारे में जानना है वो यही है, ठीक है। आप लोग इतना अगर जान लोगे तो इतना आप लोग पहचान लोगे कि इसमें नॉन फिनाइल फॉर्म है कौन सा। हाफ ईयरली में ये वाला एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट इज, अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये ऊपर वाला कौन सा फॉर्म था, पास्ट पार्टिसिपल, ओके, एंड द बिलो वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। Class, now today's homework is B1, okay class, listen to me, infinitive का सबको समझ में आ गया होगा, आवाज नहीं आ रही है, हाँ। तो इसमें जो B वाली एक्सरसाइज है ना, ये आपकी इन्फिनेटिव बेस है, इसको आप लोग कर लोगे अपने से, ठीक है। और नहीं कर पाओगे तो टुमारो आई विल टेल यू द आंसर्स आल्सो, ओके क्लास, थैंक यू।